Hi everyone, welcome to this webinar and I'm going to start in few minutes. All right, so hi everyone, this is Yukti. Let's start the seminar, the webinar, and let me just put everything on rest. Okay, so who all have joined? Let me just have a look. So let's start. So this seminar, this webinar is all about your information. This only aims at providing you information about which country is good, why it is good, especially keeping in mind Indian students. अभी मैं सारे Indian students से बात कर रही हूँ, जो nationality आपकी Indian से. हमारा एक focus होता है, हमारा एक requirement होता है, तो वो कहाँ fulfill होता है. Universities अच्छी होती हैं, they are good universities according to sometimes according to the their locals also कुछ university अच्छी होती हैं. So let's discuss and I'll try to finish this webinar in 1 hour. Yeah, I'm aiming to do that. So I would request you to have a pen and paper. Like you should have a pen and paper. And it is very much recommended because बहुत सी information ऐसी होगी जो शायद आप note करने वाली होगी. Plus इसमें एक request है, अगर आपके पास pen paper है, so write on this paper that why you are on this webinar, like what's your aim, like what is the information you needed. Just एक line, just one line you should write if you can. And मुझे अच्छा लगेगा अगर बाद में आप इसकी फोटो खींच के मुझे दें. Just write why you are on this webinar. That's it. Okay, later on I'll tell you why I asked this thing to do. I asked you to do this thing. Okay, just write मैं इस सेमिनार में इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे यूक्रेन जाना है, या फिर मुझे इंडिया में आई एम नॉट श्योर, या फिर माय ड्रीम इज टू बिकम अ डॉक्टर एंड नो मैटर फ्रॉम वेयर आई जस्ट हैव टू डू इट. या, so just write it down. It's very important. It's called affirmations. Yeah. So good to know facts about studying abroad is that, okay, wait. So see here, आप देख सकते हैं कि जो यूएस है ये 2017 का है, नॉट रीसेंट. इट्स 2017. अब तो और बढ़ गया है, लेकिन ऑफ कोर्स दिस ईयर इज टोटली समथिंग एल्स. तो जब मैं आप बच्चों को बताती हूँ कि और पेरेंट्स को भी, दैट सो मेनी स्टूडेंट्स गो अब्रॉड. सी नाउ लेट्स कमिंग टू द कंट्रीज वेयर वी वर्क. चाइना 18,000 Indian students. This is Indian and not just for MBBS. Okay. UK 14,000. इसमें तो हम करते नहीं है. जर्मनी जाते हैं बच्चे, but not just for MBBS, for other courses. Philippines 8,500. So after China, 8,500 students go to Philippines. I'm sure you know about this. After that, Russia, then Ukraine, then Kyrgyzstan. तो यानी कि नंबर 1 पे आता है आपका चाइना, जहाँ पे सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स जाते हैं. नंबर 2 पे आता है फिलीपींस. नंबर 3 पे आता है रशिया. रशिया बीइंग सच अ बिग कंट्री, वो 3 नंबर पे है. ठीक है. देन यूक्रेन, देन किर्गिस्तान. आज जिन 3 कंट्रीज की मैं बात कर रही हूँ, उनमें से जो कंट्रीज यहाँ पे हैं वो है फिलीपींस एंड यूक्रेन, जो कि 2nd and 4th नंबर पे आते हैं. ओके, सो लेट्स गो अहेड एंड फाइंड आउट and tell your parents ki you're not the one only going abroad. There are so many students who understand that if you're not getting an opportunity in India, you're free to go ahead and explore your opportunities. India में नहीं हो पा रहा तो ये नहीं कि आप give up कर दो अपने brain को. You have to go ahead. You have to seek for what you want. Just because India में seats available नहीं है, आप ये dream छोड़ दो कि आपको doctor बनना है. This is not right. That's what I believe, because I have seen students being successful after studying abroad. नीट 2020 की थोड़ी डिटेल्स देते हैं. मोर देन 16 लाख स्टूडेंट्स आर गोइंग टू अपेयर. अब देखते हैं कितने एक्चुअली में अपेयर होंगे. 50% शायद क्वालिफाई कर जाएंगे, यानी कि 16 लाख में से 8 लाख बच्चा क्वालिफाई होगा.
टोटल गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सीट्स कितनी है? 70,000 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। प्राइवेट कॉलेज की अगर बात करें तो अगर सेमी गवर्नमेंट वाला टाइप कॉलेज में लेगा तो 7 से 8 लाख रुपए सालाना फीस है, और पैसे 15-25 है, 15 से 25। आई एम श्योर यू नो बेटर देन मी। गवर्नमेंट स्कूल तो बहुत सस्ते हैं, उनमें पैसे ही नहीं लगते, ऑलमोस्ट फ्री एजुकेशन है। गाइस नाउ लुक एट दिस, जो 2019 है, जो लास्ट ईयर का नीट का रिजल्ट का है, आप ये देखिए 14 लाख बच्चों ने एक्चुअल में अपीयर किया था, उसमें से ऑलमोस्ट हाफ बच्चे, जैसे कि मैं बताया 50% क्वालिफाई हो जाते हैं, इतने बच्चे क्वालिफाई हो गए थे जिनके मार्क्स 137 से अबव आए थे। ठीक है, सीट्स कितनी है? 76,928, यानी कि 9% चांस है पूरे 14 लाख बच्चों में से उनके पास 9% चांस है कि उन्हें सीट मिलेगी। गवर्नमेंट सीट मिलने के चांस कितने हैं? 2 to 3%, बिकॉज 41,000 सीट्स हैं। ये रियलिटी आपको पता होनी चाहिए। जितनी बार भी आपको नीट एग्जाम देना है आप दीजिए, यू आर फ्री टू डिसाइड दैट, बट यू शुड नो यस नो क्या है क्या नहीं है। ठीक है, सो आपको पता होगा लास्ट ईयर क्या था, 134 मिनिमम एंड 107 फॉर रिजर्व कैटेगरी। सो जनरल कैटेगरी के लिए 134 था लास्ट ईयर, और रिजर्व के लिए 107। सो अगर बाय डिफॉल्ट मैं आपकी बात करूं, 1 सेकेंड, आपको मिनिमम 150 का टारगेट रखना पड़ता है कि आप क्वालिफाई हो जाएं। ठीक है ना, 150 का मिनिमम टारगेट। अगर नीट कंपलसरी होता है इस साल, अभी कुछ पता नहीं है, बहुत से स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे हैं मैम क्या नीट एग्जाम्ड हो जाएगा अब्रॉड के लिए भी? नो नो, गवर्नमेंट हैज नॉट बीन वोकल अबाउट इट। पीआईएल है, दिल्ली हाई कोर्ट में है, जयपुर हाई कोर्ट में है, और भी शायद साउथ में भी लोगों ने डाला हुआ है, बट अभी कोई रिजल्ट नहीं है तो कुछ नहीं कह सकते। लेकिन सितंबर में अगर नीट हो जाता है ना, तो अब्रॉड के लिए जाने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, बशर्ते आप क्वालिफाई होंगे तो ही। सो नाउ यू सो दैट नीट में आपको क्वालिफाई भी होना है, सीट्स भी कम है। ठीक है, प्राइवेट की सीट फीस ज्यादा है, सब आपको पता है, बट डू यू वांट टू स्टिल बिकम अ डॉक्टर? आप नीट में क्वालिफाई हो जाते हैं पर आपके मार्क्स उतने नहीं आते कि गवर्नमेंट में मिल जाए, और आपके पास प्राइवेट फीस भरने जितने पैसे नहीं है, 15 लाख रुपए सालाना, नॉट एवरीवन कैन अफोर्ड दैट। सो देन व्हाट शुड यू डू? प्लान बी। सो हर किसी का एक प्लान बी होता है। अगर आप पहली बार नीट एग्जाम दे रहे हैं तो आप क्या सोचोगे कि मैं एक और बार ड्रॉप कर लेता हूँ, ये आपका होगा। ठीक है, दूसरी बात क्या होगी, मैं बीडीएस डेंटिस्ट बन जाता हूँ, मैं होम्योपैथिक डॉक्टर बन जाता हूँ, आयुर्वेदिक, या बीएससी कर लेता हूँ। बीएससी करने वाले बहुत बच्चे होते हैं। Am I right? I hope I am. I can't hear you. नॉर्मल वेबिनार में, सेमिनार्स में अच्छी बात होती है कि वी कैन इंटरेक्ट। सो आई विल कम बैक टू द क्वेश्चन आंसर्स। एक स्लाइड में क्वेश्चन आंसर के लिखूंगी और देन आई लुक इनटू योर क्वेश्चन। सो अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं अभी टिल द टाइम आई हैव मेड दिस, जितना भी हो गया है वेबिनार, तो उसमें आप पूछ लीजिएगा। सो बट आई हैव सीन BHMS डॉक्टर्स कमिंग टू मी सेइंग दैट मैंने BHMS कर लिया है बट मुझे अब्रॉड जाना है, मैंने BMS कर लिया है बट नाउ आई एम थिंकिंग कि नहीं मुझे BMS नहीं करना था, मुझे अब्रॉड जाना है। आई हैव एग्जांपल्स। BDS के उतने नहीं होते, बट BDS के लोग को भी समझ में आता है कि नहीं इतना अच्छा नहीं था। चेंज द लाइन कंप्लीटली, ये भी आप लोग के प्लान होते हैं। किसने PCBM लिया होता है वो B को भूल जाता है और PCM में कुछ कर लेता है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, जिसके लिए वेबिनार है, MBBS अब्रॉड, इसके प्रॉस एंड कॉन्स, नेगेटिव पॉजिटिव, we'll try to find out and we'll discuss about them.
then study abroad क्यों अच्छा है? Why it is good? What is good in this thing? Yeah, low tuition fee 2 लाख से शुरू होकर 5 लाख तक पर ईयर में आपका पढ़ाई हो सकता है, 2 से 5 लाख डिपेंडिंग विच कंट्री विच यूनिवर्सिटी यू आर गोइंग. ओके, डायरेक्ट एडमिशन, नो सच नीट एग्जाम क्वालिफाइंग दिस एंड दैट. अभी तो ये है कि इंडिया ने कर दिया कि हाँ क्वालिफाई होकर जाना है, बट 2018 से पहले ऐसा कुछ नहीं था. नो डोनेशन. पहले के टाइम पे डोनेशन होता था इंडिया के मेडिकल कॉलेजेस में, अब कोई डोनेशन नहीं है. Recognized by Medical Council of India and WHO? Yes, it is. Loan facility. If anyone wants loan, just apply with us. We will give you all the documents required for loan and you can process your loan. If your loan doesn't go through, नहीं हो पाता अगर आपका लोन, 50% हम लोग रिफंड कर देंगे आपका. So you have nothing to lose. Special facilities for Indian students. There's Indian mess. There's Indian dance culture festivals, Diwali, Holi. Indian associations. Students have, because number of students are high abroad, Indians, तो उनके लिए association होता है. You have a separate Indian coordinator there because so many students are there, तो वो coordinate करते हैं आपको. There are so many things for Indian students. So special. There's nothing like that for Nigerians and all. लेकिन Indians के लिए बहुत कुछ होता है. Okay? अब आप बोलोगे मैम MCI का क्या करें? मैम मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के एग्जाम के बारे में आप बताइए. तो मैं अभी बात करूंगी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के एग्जाम के लिए. क्या आपको उससे डरने की जरूरत है? 2019 का MCI रिजल्ट ये कहता है कि 26% बच्चों ने MCI क्लियर किया. ऑलरेडी 28% रिजल्ट आया था जून के एग्जाम का. अब बहुत चीजें चेंज हो रही हैं. अब बच्चे कोचिंग लेके एग्जाम को क्लियर करते हैं. यू डोंट हैव टू वरी. एवरी 6 मंथ, जून एंड दिसंबर, ये एग्जाम होता है. 25 से 30% बच्चे वो होते हैं जो MCI के एग्जाम में 5 मार्क्स से क्लियर नहीं कर पाते, 5 मार्क्स से. और 40% ऑफकोर्स ये वाली परसेंटेज इसमें ऐड हो गई. 40-50% सिर्फ 10 मार्क्स से उससे नहीं रह पाते, क्लियर नहीं कर. तो यानी कि ज्यादा डिफरेंस नहीं होता. चांसेस है कि अगर और अच्छे बच्चे जाए और अच्छा पढ़े तो 50% तक भी MCI रिजल्ट पहुंचेगा एक बारी का. So we have very good positive news to look into. Now countries are so many. लेकिन कहाँ जाए, कौन सी कंट्री अच्छी है, कहाँ पे इंडियन के लिए कोई इशू नहीं आएगा, कोई दिक्कत आएगी तो कोई सॉल्व करने वाला होगा. इसलिए हम लोग आपके लिए 11 कंट्रीज लेके आए हैं. यूक्रेन, वेयर वी डील. हम यूक्रेन भेजते हैं, जॉर्जिया भेजते हैं, फिलीपींस भेजते हैं, किर्गिस्तान भेजते हैं, कजाकिस्तान भेजते हैं, रशिया, चाइना, बेलारूस, बांग्लादेश, पोलैंड, अर्मेनिया. नाउ वी आल्सो डू चेक रिपब्लिक. ठीक है. So wherever you want to go, according to your percentage, according to your competence, we will help you out. Okay. And whoever is raising hands, just put your questions on the question answer portal. Okay. You can also ask me. You can also ask, बहुत सारे लोग hand raise कर रहे हैं. You can also ask me to put you on the video. I can do that also. Okay. Let's go ahead. So in all countries, but today we are covering Ukraine, we are covering Belarus, and we are covering Philippines. In the next webinar, I'll cover other countries. ऐसे कर करके आपकी सारी countries हम cover कर लेंगे. Okay, we'll cover everything. Before going ahead, I always say that, and I'll say here also, MBBS abroad is not a replacement of MBBS from India. We are not replacing. We are not saying don't go. Yeah. We are not saying don't go to India, leave India. No, we are saying in case India doesn't happen, this is the best alternative. We will help you out to find a better alternative.
Yeah. So if आपका इंडिया में नहीं होता, then abroad. Also, I want to tell you there are countries which are exempted for medical council of India. First thing I'll tell you, if I were a student, I wanted to go abroad, I should have मैं try करती to get more and more information about MCI rather than getting scared for MCI exam. And I will request you also to not to be scared for my MCI exam. Not at all. You just have to score 150 marks out of 300 अगर MCI exam ही चलता है तो. Piyush Kumar is raising hand. Okay, let me see. Okay. So US, UK, Australia, New Zealand, Canada. These 5 countries, Medical Council of India say that if you go to these countries, you don't have to give MCI exam. You are exempted. So let's find out why. Most of this country ask for 90% marks in PCB. Do we all here have 90% marks in PCB? You have that pen and paper. It's very important to find out everything. Yeah. आप पहले लिखिए my percentage in 12th and वहाँ पे लिखिए कितना 12th में percentage है overall and उसके सामने लिखिए your percentage in PCB. Write it down. I'll ask you and then I'll suggest you which country is suitable for you. So they ask for 90% PCB. Budget 20 lakhs to 30 lakhs per year. So the duration is also not 5 years or 6 years, it's 8 years because they also teach you clinical residency. So it's a full program. It's totally till PG. So you can't stop in between. Okay, let me do for 5 years. No, 7-8 years. Multiple exam to be passed, high living cost, no direct admission. First you have to join other course, BS and pre-med course they say in these countries, and then only you are able to appear there. So BMU recommends, yeah, 8 countries now. And what do I do after visiting there? I check all these pointers. What do I check? I check whether you have proper infrastructure there. You have labs, these building, classroom, proper classrooms, proper technical things for the teachers to teach you, proper hospitals. Everything comes under infrastructure. So I check it. Then I check the qualified faculties. Faculties kaise hain? Are they from a good background, education background, what they have done by themselves? Everything I check it here. Then hospitals. How many hospitals they are tied up with? Hospital tie up. City. It's very major thing. Why is it major thing? That it should be metro city. For basically for foreigners, you are a foreigner there. You have to go in a city which is safe, which have very good welcoming behavior towards foreigners. So basically it happens in metro cities. MCI passing ratio, it's one of the factors only, just one factor, just to get an idea. Otherwise, we also send in the university where there is no MCI passing yet, but we know that it will have a good MCI passing ratio. Equipped anatomy labs, have you seen my videos where I have shown you cadavers? I don't like it personally, but I do go and for you, I record everything, like cadavers are there, how many cadavers they are doing dissection, the teachers are doing something or the other, and I have to record it for you guys. Safety index, yes. I always tell whether this country is safe or not, everything. International cooperation, yes. क्या आपकी डिग्री कल को आप कहीं अब्रॉड में जाना चाहें, is your degree helping you or is degree stopping you? So in case you tell me, ma'am, in future I have plans to go USA, in future I have plans to go UAE, in future I have plans to go to UK, then I will suggest you accordingly. I'll suggest a country which will help you further, which will not stop you from going to these countries. Indian food availability, that's the last
but not the least, right? It's a last factor, but it's not the least factor. Some students really need their Indian food availability, and we always check, and we always send also to a country to a university which provides good things. Why should you go abroad? So all of you, please listen to this one. Ask yourself, what is my need score? अभी रिजल्ट नहीं आया. NEET is not happened yet, result is not happened, but you know yourself. You know your range. So if your range is between 200 to 400, maximum our students have this range who go abroad. Maximum. We also have students up to 517. I made a video with that student already. हमने 517 नीट स्कोर वाले को भी अब्रॉड भेजा है. क्यों भेजा है? उसको वो कॉलेज नहीं मिला उसको जो चाहिए था, सेमी गवर्नमेंट मिल रहा था. He didn't want to spend 7 lakhs 8 lakh rupees per year, जबकि उस पैसे में वो 2 साल की फीस पे कर पा रहा था, है ना. अब 7 लाख रुपए एक जगह दो या इसमें 2 साल की फीस हो जाएगी अब्रॉड में, तो आपको तो 50% का डिफरेंस आ रहा था. या so what you have to do, find out for yourself. If your range is between 200 to 400, register yourself and book one university according to your budget and according to your percentage. नीट स्कोर आपका डिफाइन कर देगा, क्योंकि आपको पता है इस रेंज में, या तो आपके, मैं तो बोल रही हूँ 500 तक भी आप अगर आपके आ रहे हैं तो भी, क्योंकि लिवी नेशनल यूनिवर्सिटी की बात करें, वी हैव स्टूडेंट्स 400 plus who have gone to Livy just right after 12th, like 12th they gave 12th and they gave NEET simultaneously. Their score came 400 something. He said, no, I don't want to give one more year to NEET, I would rather go abroad, and he went abroad. Okay. Can I stay back in Belarus after MBBS? Yes, you can. You have to go through a process. You can. What is the approx budget? So this is, I'm going to tell here. I think that is it. अभी मैं आगे अपनी presentation को बढ़ाती हूँ. Please speak in English, हिंदी also. Okay, okay. मैं हिंदी में भी बात करती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है. तो आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं बेलारूस के बारे में. So weather condition -8 -10 से लेकर गर्मियों में 30 डिग्री का भी टेम्परेचर होता है. इंडिया से जो डिस्टेंस है 10 आवर्स विद हॉल्ट. तो आप जाते हैं दिल्ली से वाया कीव से होते हुए जाते हैं आप फ्रॉम दिल्ली टू कीव टू मिन्स्क. ठीक है. इंडियन फूड अवेलेबल है, मैंने उसका वीडियो भी डाला हुआ है. नमस्ते कैफे है बेलारूसियन में. बाकी जगह पे ठीक ठीक है, मतलब उतना अवेलेबल नहीं है. Degree is recognized worldwide. There is no country which denies the degree of Belarus. Safety index, it's very safe. Medium of instructions, English. For throughout 6 years, nobody can point out a question on that it is English. MCI 18-26% है, ये 2012 नहीं 2012 से 2014 या 15 का है. ठीक है. So some pointers about Belarus. It's the 10th safest country in the world. You can check it out for yourself. Belarus Safety Index. You can search on Google. You will find this. So this one is the #1 medical university of Belarus, not only for Belarusians but also for Indian students. They provide very good facilities, and they have highest number of associations with the hospitals.
They have highest number of polyclinics. Their anatomy lab is really nice. Okay, full 6 year English medium. इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आप चेक कर सकते हैं. Let me just do it right now. Maybe. How do you do that? Yeah. For example, आपको बेलारूस का चेक करना है. This is World Directory of Medical Schools. So search.wdoms.org. It gives you information about universities, medical university abroad. So this is about which Belarusian state medical, yeah. अब आप क्या देखेंगे? Clinical training, 50 to 70% of the full program is clinical training. तो काफी अच्छी clinical training है, ठीक है. 1921 में start हुई थी यूनिवर्सिटी. पब्लिक यूनिवर्सिटी का मतलब है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, ठीक है. स्कूल हैज एक्सेस टू क्लिनिकल टीचिंग फैसिलिटीज. क्लिनिकल्स है मतलब उनके एसोसिएशंस है हॉस्पिटल के साथ. स्कूल वेबसाइट 2 लैंग्वेज में है. कई लोग इसको लैंग्वेज बता देते हैं. ये स्कूल की वेबसाइट है. बहुत लोग बहुत गलत इंफॉर्मेशन देते हैं. सब लोग जो वीडियो बनाते हैं यूट्यूब पे, दे आर नॉट really authorized to make videos. I feel so, but there is no censorship on YouTube yet. स्कूल वेबसाइट, अगर आपको रशियन लैंग्वेज में देखनी हो तो इन रशियन को क्लिक करेंगे. अगर आपको स्कूल की वेबसाइट इंग्लिश लैंग्वेज में देखनी हो तो आप इंग्लिश में करेंगे. ये कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के बारे में है. ये है प्रोग्राम डिटेल्स. ये है आपके प्रोग्राम की डिटेल बेलारूसियन स्टेट मेडिकल की. अगर आप पहला देखेंगे, इट्स मेडिकल इन रशियन. जो बच्चे रशियन लैंग्वेज मेडिसिन करना चाहते हैं उनके लिए ये. सो आप देखिए करिकुलम रिवाइज्ड. Wait, can I do some? So 1921 में रशियन मीडियम का शुरू हो गया था. So, okay. So ये सारे बच्चे तो रशियन मीडियम वाले हैं. ओके, अब आते हैं इंग्लिश मीडियम. ये है इंग्लिश मीडियम कोर्स. ये है इंग्लिश मीडियम कोर्स. वो रशियन मीडियम कोर्स था. तो वहां दिख रहा है आपको इन रशियन मीडियम, इन इंग्लिश मीडियम. मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि इंग्लिश मीडियम यहाँ 2011 में शुरू हुआ था. तो जो बच्चे 6 साल पढ़ के आएंगे वो 2017 में ग्रेजुएट होंगे. उससे पहले कोई भी ग्रेजुएट नहीं होगा. एक मिनट. सो 2017 में 7 बच्चे, यानी कि एक ग्रुप 7 स्टूडेंट्स का होता है, वो 2017 में ग्रेजुएट हुआ. 2015-2016 में क्यों नहीं ग्रेजुएट है? क्योंकि इंग्लिश मीडियम में कोई उससे पहले गया ही नहीं था. तो 2016 में वो लास्ट ईयर में थे, अपने 6th ईयर में. 2005 में वो अपने 5th ईयर में थे. तो बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि अरे यूनिवर्सिटी कैसी है. आप ये देखिए कि 2011 से जब इंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था, उसके बाद उससे पहले का नहीं दे रखा, लेकिन 2015 में 65 स्टूडेंट ने एडमिशन लिया इसमें. फिर 2016 में 114 ने लिया. फिर अभी इसमें इतने ने लिया. तो 2012 वाला कब ग्रेजुएट होगा गाइस? 6 इयर्स को ऐड करो 2018 में. तो 2018 में, 2019 में, 20 ऐसे करके करके अब जो है ग्रेजुएट होना शुरू हो रहा है. क्योंकि पहले इतने इंडियन स्टूडेंट्स यहाँ नहीं जाते थे, unlike other universities. Is it understandable? I hope that आपको समझ में आया होगा. Got it? So let me just start with my presentation. It is equipped with biology and anatomy labs. There is very good anatomy labs, everything. Just be on the webinar and you'll get all the answers. ये एनाटॉमी टेबल कहते हैं इसको. बेसिकली हमेशा आपके पास अगर
बॉडी है, कैडवर है, लेकिन आप बहुत सारी चीज़ें नहीं देख पाते, नर्वस सिस्टम और जो भी इंटरनल सिस्टम्स होते हैं, तो इसलिए ये एनाटॉमी टेबल यूज होती है। इसे टच स्क्रीन करके आप एक्सरे कैसा है बॉडी का, कैसे दिखता है एक्सरे, कौन सी पार्ट का कैसा एक्सरे दिखता है, ये वो उसमें हर तरह का चीज़ आराम से दिख जाती है। यहाँ पे MCI कोचिंग भी अवेलेबल है। अभी रिसेंटली मैंने ऑनलाइन वेबिनार किया था वहाँ के बच्चों के साथ। अगर आप देखें लास्ट प्रीवियस वीडियो मेरी, तो उसमें बच्चों ने खुद बताया कि वहाँ पे काफ़ी अच्छे जो टीचर्स हैं, जो इंडिया में बहुत ही पॉपुलर हैं, वो वहाँ पे MCI कोचिंग देने के लिए आते हैं, बच्चों को सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए आते हैं। So this girl here is my student. I just recognized Shivani Damahe, and this is also one of my student, I guess. बाकी हाँ, ये दिस इज चैताली, ये मेरे वेबिनार में भी अटेंड किया था इसने। दिस इज ऑल्सो माई स्टूडेंट, वेरी वेरी नाइस स्टूडेंट। ये भी हमारा स्टूडेंट है, दिस वन। और भी शायद होंगे, can't really recognize all of them, but yes. This is also my student from Mumbai. So काफी स्टूडेंट हमारे यहाँ पे हैं, ये भी हमारा स्टूडेंट है। So we can give you proper feedback about this. कैसा है, बच्चे जो स्टूडेंट हैं उनके नंबर दे सकते हैं आपको, वो आपको बहुत अच्छे से बताएंगे, ठीक है। नाउ दिस इज बेलारूस मैप, ओके। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इट्स अ 10th सेफेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। यहाँ पे एक सेफ्टी इंडेक्स देख रहे हैं आप, बेलारूस, पोलैंड, लातविया, लिथुआनिया, रशिया। सबसे ज्यादा हाईएस्ट सेफ्टी रेशियो यहीं का है। सो दे आर ज्यादा स्टेट सिटीज नहीं है यहाँ पे। एक यूनिवर्सिटी आपकी मिन्स्क में है, विच इज बेलारूसियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। एक यूनिवर्सिटी आपकी विटिब्स्क में है, विटिब्स्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो आपको यहाँ से यहाँ जाना होता है, 200 से 300 किलोमीटर में सब कवर हो जाता है, ठीक है। एक आपकी ग्रोदनो में है, ये भी 300 किलोमीटर के बीच में है, और एक आपकी गोमेल में। सो दे आर टोटल 4 मेडिकल यूनिवर्सिटी इन बेलारूस, ओके। अगर आप पॉपुलेशन देखें, सबसे हाई पॉपुलेशन मिन्स्क की है, सबसे हाई पॉपुलेशन मिन्स्क की है नंबर 1 पे। सेकंड आपकी गोमेल है, देन थर्ड आपका ग्रोदनो है, एंड फोर्थ आपका विटिब्स्क है। इसलिए हम आप सबको मिन्स्क में प्रेफर करते हैं, सेफ और अच्छा रहता है, ठीक है। 1 करोड़ टोटल पॉपुलेशन है अभी बेलारूस की, तो बहुत अच्छा है, बहुत सेफ लगेगा आपको यहाँ पे, बहुत ही बढ़िया कंट्री है to stay back also. Even I felt like staying back over here when I was there. It was really nice. Okay, so we recommend to you these 3 universities. We recommend to you Belarusian, which is the number 1 university according to us. Nothing can beat the capital city university. Second पे आता है विटिब्स्क। जब सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स यहीं पे हैं, क्योंकि सबसे पहले इंडियंस के लिए डोर ओपन इसी यूनिवर्सिटी ने करे थे सबसे पहले, इसलिए यहाँ ज्यादा स्टूडेंट्स हैं। देन कुछ बच्चे ग्रोदनो गए, कुछ गोमेल गए, लेकिन अभी रिसेंटली आपने देखा ये 2011 में ना इन्होंने इंडियन स्टूडेंट्स देना शुरू करा है। तो अभी रिसेंटली इंडियन स्टूडेंट्स गए हैं, इसलिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम है, और इसलिए नंबर 1 स्टूडेंट्स ज्यादा विटिब्स्क में है। हमारे पास ग्रोदनो में भी काफी बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है। So the admission process, एक तो आपका 6 इयर्स का है ड्यूरेशन। 6 इयर्स क्यों होता है यहाँ पे इन कंट्रीज में? ये लोग फर्स्ट 3 इयर्स 1 2 3 ये प्री क्लिनिकल सब्जेक्ट्स, जो क्लिनिकल से रिलेटेड नहीं होते, थ्योरी वाले होते हैं, प्री क्लिनिकल, उनको पढ़ाते हैं, और 4th 5th 6th में क्लिनिकल सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, ओके। तो 1 2 3 क्लिनिकल, प्री क्लिनिकल, थियोरेटिकल्स आपके एनाटॉमी वगैरह होता है, और आपका 4th 5th 6th में ये क्लिनिकल सब्जेक्ट होते हैं, इसलिए। और ये लोग 10th तक की पढ़ाई करते हैं, मतलब हम जो 11th 12th में पढ़ लेते हैं वो ये यहाँ नहीं पढ़ते अपने स्कूल में। हमारे यहाँ जैसे आपको अपना स्ट्रीम सिलेक्ट कर लेना होता है, 11th 12th हम स्कूल में पढ़ते हैं, ये लोग यहीं पे पढ़ते हैं।
तो जब बच्चे यहाँ पे फर्स्ट और मतलब थर्ड सेमेस्टर तक बच्चों को ऐसा लगता है कि वो रिपीट ही कर रहे होते हैं, तो उन्हें कोई इतनी दिक्कत नहीं आती, और एक्चुअल पढ़ाई शुरू होती है आपकी सेकेंड ईयर के बाद से, क्योंकि आपको कुछ नया सीखने को मिलता है, बिकॉज हमारे यहाँ इतनी पढ़ाई करनी पड़ती है नीट के लिए भी एंड एवरीथिंग, या सो दैट इज क्लियर। दूसरा मैं आपको एडमिशन प्रोसेस बता देती हूँ। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप इज टू अप्लाई फॉर एडमिशन लेटर। आपका लेटर आ जाएगा यूनिवर्सिटी से। अभी के हिसाब से आपको ये फर्स्ट स्टेप है, इसमें आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन करवाना है। आप हमारे किसी भी काउंसलर से रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जान सकते हैं। उसके बाद हम वेट करेंगे टिल सितंबर नीट का। नीट में होता है, नीट नहीं होता है, जो भी होगा। जब नीट का आ जाएगा उसके बाद हम आपका वीजा लेटर मंगवाएंगे यूनिवर्सिटी से। वीजा लेटर एम्बेसी के पास जाता है सीधा, हमें नोटिफिकेशन आ जाता है कि एम्बेसी के पास वीजा लेटर चला गया। हम यहाँ से एम्बेसी को सारे आपके डॉक्यूमेंट्स नोटराइज करके मिनिस्ट्री से, यहाँ की मिनिस्ट्री से प्लस ट्रांसलेट करके जो भी काम होता है वो सब करके यहाँ से एम्बेसी से, यहाँ से डॉक्यूमेंट आया तो एम्बेसी दोनों वेरीफाई करती है। एक दिन आपको अपॉइंटमेंट के लिए बुलाती है एम्बेसी, जिसमें हम आपके साथ जाते हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव DME रिप्रेजेंटेटिव आपके साथ जाएंगे। विद इन 10 मिनट्स 15 मिनट्स का आपका इंटरव्यू होता है। वहाँ के जो वीज़ा काउंसलर है वो आपको वीज़ा लेने से पहले एक बार पूछते हैं कि आप क्यों जाना चाहते हो, और आपको पॉजिटिव चीज़ें बताते हैं बेलारूस के बारे में। अगर कोई डाउट है तो आप बेलारूस के बारे में पूछ सकते हैं उनसे। फिर उस दिन या तो 3 डेज के बाद आपका वीज़ा मिल जाता है, ठीक है। एंड देन वी बुक योर टिकट्स एंड देन यू फ्लाई टू बेलारूस। इजी, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दिस इज अ यूनिवर्सिटी, मैं यहाँ पे गई थी 2 बार जा चुकी हूँ मैं बेलारूस अभी। ये कुछ नीचे चला गया। एनीवेज, ट्यूशन फी मैं आपको इसकी, काफी लोग ट्यूशन फी के बारे में पूछे थे, तो मैं इसका ट्यूशन फी आप लोग को बताती हूँ। बहुत इजी फी स्ट्रक्चर है, just don't want to do any mistakes. तो ट्यूशन फी है यहाँ की $5100, जो कि अभी के रेट से आपको you should not run out of time। 5100 into 75 का रेट चल रहा है। We did last year in 60 something rate, but अभी at the rate of 75 it will cost you 3,82,500। हॉस्टल फीस $720 पर ईयर, ठीक है। 720 into 75 54,000 पर ईयर। आप लोग कोटा गए होंगे, आप कोटा में आपका कितना आता था हॉस्टल का चार्ज, आप कंपेयर कर सकते हैं यहाँ से। आपका ये साल का है। आपका मेडिकल इंश्योरेंस, वीजा एक्सटेंशन वगैरह जो लगता है टोटल $310 के आसपास पड़ता है। एट द रेट ऑफ 75 ये 23,250 पड़ेगा। तो कितना होगा टोटल? 382,500 प्लस 54,000। अगर 6 ईयर से कैलकुलेट करें, 6 ईयर्स के लिए, ओके कुछ हुआ तो 459 750 इंटू 6, ठीक है। इसके अलावा आपका फूड एक्सपेंसेस आएगा जो $1,000 शायद आपका ईयरली आए,
तो उसको आप और मल्टीप्लाई कर सकते हैं फॉर फूड एक्सपेंस। ये मैक्सिमम है, अगर आप खुद से बनाएंगे तो शायद ये 600 तक भी आ सकता है एज पर द स्टूडेंट जो मुझे बताते हैं। तो वो तो होता ही, अगर आप हर दिन बाहर से खाएंगे तो कैसा होता है, और घर में खाना ही कैसा होता है। इज इट क्लियर गाइस? कुछ बच्चे स्कॉलरशिप के लिए पूछ रहे थे। स्कॉलरशिप नहीं, डिस्काउंट मिलता है। अगर आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, यूनिवर्सिटी को प्रमोट किया, तो 60% तक का बच्चों को ऑफ मिल सकता है इन द ट्यूशन फीस, जो कि हमारे स्टूडेंट्स को भी मिला है। तो दैट्स टोटली ऑन योर परफॉर्मेंस। You can watch my video where the dean of the university has told this thing. ये है दूसरी बेस्ट यूनिवर्सिटी जिसके बारे में हम आपने बताया था, विदर्भ स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। 1934 में स्टैब्लिश है, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई है, 5 यूनिवर्सिटी के अपने हॉस्टल्स हैं, इंडियन मेस अवेलेबल है। 2012-2018 के बीच 26% एमसीआर रेट का एवरेज रहा था। Is Belarus clear to everyone? Sahin, there is no scholarship in Ukraine. No scholarship, especially not on basis of NEET score at all. I know आपकी काफी अच्छा NEET स्कोर है 518, आप चाइना ट्राई करें, वहां स्कॉलरशिप मिलने के चांस है। What about number of seats in this year, as a lot of students from China might be transferring there? Yeah, many are transferring to Armenia, many are transferring to Georgia. Yes, I can guide for veterinary medicine abroad also. अगर आपका बजट 20 लाख के आसपास है, then you can, रशिया और यूक्रेन में आपको उतनी अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं मिल पाएगी। So let's start with Philippines. So this is a very important country. अभी जो हमने आपको recently इसके बारे में बताया है। So first very good point about Philippines is no snowy winters. आपको ठंड वाला बिल्कुल माहौल नहीं मिलेगा। Disease same like India. Locals speak in English and they follow the US pattern. Those who are really looking for US family and all later on, definitely they should think of going to Philippines. ये आपका फिलीपींस है, देखने में छोटा लग रहा है, जब मैं गई हूँ यहाँ पे काफी काफी अच्छा लगा मुझे। सो बेसिकली कुछ यूनिवर्सिटीज 1 साल का कोर्स करवाती है, जैसे कि आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ परपेचुअल हेल्थ, वो सिर्फ 1 ईयर का कोर्स करवाते हैं, एबी साइकोलॉजी। और कुछ यूनिवर्सिटी 1.5 साल का कोर्स करवाती है, जैसे कि दवाओं। तो ये आपके ऊपर है, डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप कहाँ पढ़ना चाहते हैं। आपका जो एक्चुअल कोर्स है वो केवल और केवल 4 इयर्स का है, एमबीबीएस का। आपको ये कोर्स क्यों करना पड़ता है? क्योंकि 12th के बाद डायरेक्टली आप एमबीबीएस में नहीं जा सकते, बिकॉज वहाँ 10+3 का सिस्टम है और आपने 10+2 किया है, तो आपको गैप भरना पड़ता है। बीएस बायोलॉजी ज्यादा लंबा है क्योंकि इसमें बायो की चीजें हैं। एबी साइकोलॉजी कम ड्यूरेशन का है। गॉट इट? तो यानी आपको 2 डिग्रीज मिलती है, 2 डिग्रीज। इफ यू गो फॉर साइकोलॉजी, आपको एबी साइकोलॉजी की डिग्री भी मिल रही है और आपको एमबीबीएस की डिग्री भी मिल रही है। यू टेक 2 डिग्रीज इन 5 years. And if you go for Davao for 1.5, you get 2 degree BS biology and MBBS. Okay. So this is very important. आप 12th करते हो, आप शायद नीट दे रहे हो, ये आपके ऊपर है, आप कितने साल का नीट आपने भरा होगा। लेट मी चेंज द कलर। नीट आपने 1 साल दिया, 2 साल दिया, डजंट मैटर। तो ये है आफ्टर 12th का, ठीक है। फिर मैं आपको आफ्टर बीएससी का भी बताऊंगी। ओके, so if you give 12th and you want to go for MBBS in Philippines, what you do is you apply for BS course or AB psychology. So you have to do a 15-month course if it's BS course or 12 months course if it's AB psychology. After that, you have to appear for NMAT.
नाउ ये इसके बाद नहीं करना, यू कैन डू ड्यूरिंग ऑल्सो। इसका मैंने एक पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है आपको समझाने के लिए। एनमेट आप कहीं भी बीच में कर सकते हो, जब मार्च बीच में, अगर मार्च आता है या नवंबर, क्योंकि 2 बार ये एग्जाम होता है। अभी 2020 के लिए कोई भी एनमेट जरूरी नहीं है, एज पर फिलीपीन गवर्नमेंट उन्होंने एनमेट हटा दिया है अभी के लिए, तो एनमेट देना ही नहीं है। और अगर देना ही पड़ता है तो केवल अपीयर करना है। बहुत लोग ये रूमर्स उड़ाते हैं कि एनमैट 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 एनमैट, कुछ भी नहीं है एनमैट, ठीक है। वी कैन डिस्कस दैट आल्सो। I'll have a separate video for that to explain you better. So एनमैट आप दे, फिर आप 4 साल का एमडी कोर्स कर लीजिए। So इसके बारे में ज्यादा एक्सप्लेन तरीके से आप यहाँ पे सीख समझ सकते हैं। So this is for Philippines. If you go to Philippines, सीधा फिलीपींस जाना है अगर आपको। And this one is for the campus in Pune, because this is about Davao. Okay, so अभी ये शिफ्ट होके जुलाई हो गया है, बिकॉज ऑफ कोरोना ये नहीं हो पाया। तो ऑनलाइन क्लासेस आर स्टार्टिंग नाउ। तो जुलाई से ऑनलाइन क्लास शुरू हो जाएंगी टिल अक्टूबर यू कैन गिव ऑनलाइन, बिकॉज अभी आपका नीट का एग्जाम नहीं आया। बट बीएस कोर्स के लिए नीट की जरूरत नहीं है, तो आप अपनी एमबीबीएस की जर्नी शुरू कर पाओगे, ठीक है। जब आपका नीट का रिजल्ट आ जाएगा, वी आर एज्यूमिंग कि नीट सितंबर में होगा और अक्टूबर में रिजल्ट आ जाएगा, वी आर अज्यूमिंग इट, हम ये मान के चल रहे हैं। तो नीट के आने के बाद भी आप बाकी के टाइम या तो ऑनलाइन ही या फिर पुणे कैंपस में अपना बीएस कोर्स कर सकते हैं। सो मार्च में एनमैट होता है, फिलीपींस में होता है, तो आप फ्लाई करोगे फिलीपींस, ठीक है, और एनमैट अपीयर करोगे। अपीयर करना है केवल, यू डोंट केयर आप पे कितने मार्क्स आ रहे हैं, नो प्रॉब्लम। देन यू हैव टू कंटिन्यू योर कोर्स एंड आपका एडमिशन हो जाएगा एमडी प्रोग्राम में, अगस्त सितंबर अक्टूबर तक आपका हो जाएगा, ठीक है। वेरी सिंपल प्रोसेस। तो टोटल ईयर यू आर स्पेंडिंग इज ओनली 5 years 3 months एक्चुअली, नॉट इवन 5.5, ओके। एंड अगर आपको डायरेक्टली फिलीपींस जाना है, यू कैन फ्लाई डायरेक्टली टू फिलीपींस एंड डू योर BS course, do give your NMAT, appear for NMAT in March, just like that. Continue your BS course, November, December holidays, and enroll in the 4-year MD program in January. It's very easy and it's very beneficial according to the situation which is going on right now. उसके हिसाब से ये सबसे बेस्ट है। अगर आपने BS कोर्स किया हुआ है, अगर आपने BS कोर्स किया हुआ है, सो यू जस्ट हैव टू अपीयर फॉर एनमैट। इससे तो आपको एनमैट भी अपीयर नहीं करना, क्योंकि 2020 में अपीयर नहीं है, आप सीधा एनरोल कर सकते हो एमडी के लिए। इफ यू हैव डन BSc, इफ यू हैव डन B Pharma, if you have done BDS, if you have done any bachelor course, BHMS, BAMS, आपको BS कोर्स करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपने 10+2+3 कर लिया है, आपने ऑलरेडी वो क्वालिफाई कर लिया है। तो इसलिए आप सीधा MD कोर्स में 4 साल में आप MBBS कर सकते हैं। कोई आपका फ्रेंड हो अगर, एनीवन who has done BDS, B Pharma and want to do MBBS, suggest them this. उनके पैसे और टाइम दोनों ही कम लगेगा, okay? So very beneficial. Don't waste your time. Register and start your online BS course, because you can save at least 4 months. You are saving straight away. आप ऑनलाइन क्लास करके अपना 4 महीने बचा सकते हो। एनीवेज, एडमिशन प्रोसेस मैंने समझा दिया आपको। अब मैं आपको इसका फीस स्ट्रक्चर समझा देती हूँ। जो BS कोर्स है, इंडिया में तो BS कोर्स का कितना भी लगता है, यहाँ पे आपका अगर आप दवाओं की बात करें तो 1 लाख रुपीस के आसपास का खर्चा आता है BS कोर्स का, 1.5 years का। उसके बाद सीधा आपको केवल $5100 पर ईयर की फीस देनी है।
$5100 वही हमने कैलकुलेट किया 380 के आसपास, 380 इंटू 4, 15,20,000 का तो आपका MBBS का कोर्स हो गया और 8 लाख का आपका BS का कोर्स हो गया, तो 23 लाख के आसपास पड़ा, प्लस आपका फूड और अकोमोडेशन, तो ये 30 लाख के अप्रोक्सीमेटली आपका पूरा खर्चा आएगा। इट इज फॉर दवाओं। और सिमिलरली आपका यूनिवर्सिटी और परपेचुअल हेल्थ भी आपका 24 तक और इंक्लूसिव पूरा कोर्स की ट्यूशन फीस आ जाती है। ठीक है, टॉप 3 यूनिवर्सिटीज, ये वाली आपकी दवाओं सिटी में है, दवाओं मेडिकल स्कूल फाउंडेशन, ये आपकी मनीला में है, यूनिवर्सिटी परपेचुअल है, मनीला से थोड़ा सा दूर है, 30 किलोमीटर 30 मिनट्स की दूरी पे, और ये आपकी है दागूपान में। इसका बजट आपका 24 लाख है ट्यूशन फीस का, इसका बजट आपका 23 लाख का है ट्यूशन फीस का, इसका बजट सब कुछ मिला के आपका करीब करीब 25-27 आता है, फूड अकोमोडेशन मिला के। इसका 30 आता है विद फूड अकोमोडेशन, इसका भी 30 प्लस आता है, 30-32। इसका आपका सबसे इकोनॉमिकल, इसकी भी वीडियोस बहुत जल्द मेरे यूट्यूब पे आ जाएगी। ठीक है, इफ यू वांट टू गो रियली इकोनॉमिकल, गो फॉर दिस यूनिवर्सिटी। आई माइसेल्फ विजिटेड देयर, LNU, लाइजियम नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी। इसके भी स्टूडेंट्स का हम इंटरव्यू लेंगे और आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो किसी का 25 तक का बजट है, प्लीज हमसे, हमारे काउंसलर से आप लाइजियम यूनिवर्सिटी का फीस स्ट्रक्चर ले सकते हैं। ट्यूशन फी मैंने एक्सप्लेन कर दिया आप लोगों को। नाउ यूक्रेन, so we have 76 people right now. Okay, the link you sent me was of books allotted to students is open library, like yeah, library is available for everyone. Am I eligible for Philippines without need? Yeah, ये भी मैं आप लोगों को थोड़ा explain कर देती हूँ। Okay, so what is without need? So if you are taking directly admission in MBBS, as per the current rule, without need not possible. Okay, आपको जो 6 से सा कोर्स है अपना यूक्रेन का स्टार्ट करना होगा फर्स्ट ईयर से ही ना, तो वो विदाउट नीट आप नहीं कर सकते। बट व्हाट इज गुड विद फिलीपींस इज राइट नाउ द फर्स्ट थिंग इज BS कोर्स एंड देन इट इज MD कोर्स। फॉर MD कोर्स you have to be NEET qualified, not for BS course, not for BS course. So आप अप्लाई कर सकते हो BS कोर्स में right now, even if NEET 2020 doesn't happen. ठीक है, because this is a 1 year or 15 months course, you have time to give NEET of May 2021. Simple. Okay, then you can, when you, before you enter to MD, you can give May 2021 का NEET and you can, अगर NEET एग्जाम नहीं होता है तो, अगर NEET एग्जाम हो जाता है then there is no problem. या अगर नीट में आप डिसक्वालीफाई होते हैं तो भी BS कोर्स में कोई दिक्कत नहीं है, आप May 2021 का दे सकते हैं। अगर आपका नीट में नीट होता ही नहीं, कंडक्ट ही नहीं हो पाता, इफ यू हैव नॉट अप्लाइड इन नीट दिस ईयर but you wish to apply, then also go for BS course and you can give next year's thing. Your time is saved. Yeah, okay, now coming to this university. So this is Kyiv, this is Vinnytsia, this is Odessa,
Then this is Ternopil, this is Ivano-Frankivsk, this is Lviv, this is Uzhgorod, this is Chernivtsi जहाँ पे बुकोवेनियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे टर्नोपिल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है, इवानो-फ्रैंकिव्स्क है, यहाँ उज़्गोरोद है, यहाँ लिविव है. अब बात करते हैं यहाँ पे ओडेसा नेशनल मेडिकल है जो अब लिस्टेड नहीं है एमसीआई में, यहाँ पोल्तावा है और यहाँ पे खार्किव है. इसके अलावा अगर आप देखें तो ये क्रीमिया का पार्ट है जो अब रशिया का पार्ट हो चुका है, तो इसे ऑटोनोमस रिपब्लिक ऑफ क्राइमिया लिखा हुआ है. ओके. कीव की अगर बात करें, कीव की पॉपुलेशन है 27 लाख 2019 में. It is the capital and the most populous and largest city of Ukraine, located in the north central part of the country of Dnipro. Kharkiv. Kharkiv is the second most populous city in the Ukraine, located in the northeast of country. It has 13 national universities, hence called the student city. Kharkiv was the first capital of Ukrainian Soviet Socialist Republic from December 1919 to January 1934, after which the capital relocated to Kiev. इसकी पॉपुलेशन है 14,30,000. फिर आते हैं हम विनित्सिया में. विनित्सिया में जा चुकी हूँ, कीव से ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक है. और इसकी जो पॉपुलेशन है वो 3.52 है. तो यहाँ पे काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं. स्टूडेंट्स कम हेयर टू गेट एजुकेशन, टेक्निकल, मेडिकल, पेडागोजिकल, एग्रीकल्चर, स्टेट यूनिवर्सिटीज़. देन आते हैं लिविव. लिविव की पॉपुलेशन है 8 लाख. Is the largest city in western Ukraine and 7th largest city in the country overall with a population of 721. Lviv is one of the main cultural centers of Ukraine. काफी cultural चीजें होती हैं. Ivano-Frankivsk की population है 2,04,000. Is a historical city located in the western Ukraine. It is administrative center of Ivano, an important economical and cultural center of West Ukraine. फिर हम करते हैं बात चेरेनिव्त्स्की. चेरेनिव्त्स्की is an oblast in western Ukraine, considered northern parts of region of Bukovina. It has international borders with Romania and Moldova. It is the smallest in Ukraine. सबसे छोटा प्रोविंस है ये वाला. यहाँ की पॉपुलेशन however इवानो से ज्यादा है 2.36. ठीक है. तो हम लोग आपको कौन कौन सी यूनिवर्सिटी प्रेफर करने को कहते हैं, या तो इस कंट्री में जाओ, इस सिटी में जाओ, या इस सिटी में जाओ. ठीक है, इस सिटी में जाओ, इस सिटी में जाओ, as recommended. बाकी definitely is your choice. Wherever you want to go, you can go. यूक्रेन की बात करते हैं. ये देखिए, बेलारूस, पोलैंड, ठीक है, रोमानिया, मोल्दोवा, इससे कनेक्ट करता है. ये पूरा रशिया है आपका. ठीक है. 50% MCR रूल चाहिए. गैप इज नॉट अ प्रॉब्लम. कुछ लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं क्या? MD में राष्ट्रीय अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हमें कांटेक्ट करिए, आपका हम एडमिशन करवा देंगे. अभी प्लीज देखिए कौन कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी हैं यूक्रेन की. गैप इज नॉट अ प्रॉब्लम. आपका गैप है, आपकी एज का कोई दिक्कत नहीं है. प्लस 31, 32 तक लोग जा सकते हैं यहाँ पे, उससे भी ज्यादा शायद. फुल कोर्स इन इंग्लिश मीडियम, लैंग्वेज taught only to communicate with patient, university with latest technology are available. ठीक है. रीजंस टू चूज यूक्रेन. वेदर कंडीशन कोल्ड तो है ही, आप लोगों को पता ही है. डिस्टेंस, अब आप दिल्ली से सीधा कीव जा सकते हैं. ये मैंने 6.5 लिख दिया. 7 तक मतलब हाँ 7 आवर्स लग ही जाते हैं, 7 आवर्स प्लस लगते हैं. मैं जब गई तब मुझे पता थोड़ा टाइम लग गया था, बिकॉज बीच में पाकिस्तान का इशू आ गया था तो उन लोगों ने थोड़ा सा लंबा रुक लिया था. इंडियन फूड अवेलेबल है क्योंकि इतने स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे कि हर जगह इंडियन फूड मिल ही जाता है. डिग्री वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड है, कोई दिक्कत नहीं, सिवाय मिडिल ईस्ट के. इट्स नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन मिडिल ईस्ट. बहुत से बच्चे पूछते हैं, बहुत से मिडिल ईस्ट के लोग हैं, अगर वो वहीं पे काम करना चाहें तो उन्हें दिक्कत आती है. यूक्रेन की डिग्री वहाँ पे वैलिड नहीं है. आप ये चेक भी कर सकते हैं.
So if you're from Middle East, if you are attending my seminar, you're from Middle East, don't go to Ukraine, go to any, like go to Belarus maybe, आपको सेम और अच्छी फैसिलिटीज मिल जाएंगी और ये दिक्कत भी नहीं आएगी. Okay. It's safe, like the maybe the safety index would say a different story, but for Indians, अगर आप अपना ढंग से रहते हैं और टाइमली आते जाते हैं बाहर, इतना ऐसे नहीं निकलते हैं, तो ये सेफ है. सेफ्टी आपके अपने हाथ में है. मीडियम इंस्ट्रक्शन इंग्लिश है, नो डाउट. पासिंग रेशियो 11 से 30% है. इस साल जो 2019 का पासिंग रेशियो बहुत अच्छा आया है, 49-48% पासिंग रेशियो यूनिवर्सिटीज का इंडिविजुअली. सो दिस इज रियली प्रॉमिसिंग और बहुत अच्छा लगा है जान के. सो एडमिशन प्रोसेस की बात करें, यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे, यूनिवर्सिटी से एडमिशन लेटर आ जाएगा. ठीक है. एडमिशन लेटर आने के बाद अभी इनविटेशन इशू होना शुरू नहीं हुआ है. जब वो शुरू हो जाएगा तो हमारे पास ओरिजिनल इनविटेशन लेटर आता है. हम ही लोग यूनिवर्सिटी सबमिट करते हैं, नॉट लाइक बेलारूस. बेलारूस में सीधा एम्बेसी पे जाता है, तो हम लोग सबमिट करते हैं यूनिवर्सिटी एम्बेसी में विद ऑल योर ट्रांसलेटेड डॉक्यूमेंट्स एंड योर बैंक स्टेटमेंट लगती है और आपका स्पॉन्सरशिप एफिडेविट लगता है. हम लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स देते हैं आपको. एम्बेसी में सबमिट होने के बाद 10 to 15 डेज में वीजा लग जाता है. ये मैक्सिमम टाइम बता रही हूँ मैं आपको. फिर हम आपकी टिकट करते हैं और आप यू फ्लाई टू यूक्रेन. इफ यू सिलेक्ट फॉर कीव, देन आपको कीव तक हम लोग आपको भेजते हैं. अगर कीव के अलावा आप कहीं भी जा रहे हो तो अगर वहां तक फ्लाइट है तो हम फ्लाइट करवाते हैं, वरना आपका ट्रांसपोर्टेशन का अरेंजमेंट करते हैं उस सिटी तक, एंड वहां से लेकर यूनिवर्सिटी तक हम आपको ड्रॉप करवाते हैं. ओके. So this is all included in our consultancy charge. Top 6 medical university, because university तो वहाँ पे काफी हैं जो Medical Council of India and WHO से listed हैं, but you should know that where you should go and which is good. So number 1 is definitely in Ukraine, and for students no issue, no problem. University बहुत अच्छी है. Even मैंने एक स्टूडेंट का इंटरव्यू भी लिया है, जो भी स्टूडेंट वहाँ पे पढ़ रहा है उसका इंटरव्यू लिया हुआ है. तो ये मेरे हिसाब से और स्टूडेंट की रिव्यू के हिसाब से नंबर 1 यूनिवर्सिटी है. सेकंड नंबर पे हम लोग रखते हैं लिविव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी को. यहाँ पे भी आपको सारी फैसिलिटी मिलती है. हाँ, हॉस्टल्स दूर हैं थोड़ा सा, जो कि सभी जगह है. जैसे तरस के हॉस्टल्स पास में है, ओनली 500 मीटर. ये थोड़े से बच्चे हमें बताएं 2 से 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पे है हॉस्टल्स. तो सेकंड नंबर पे. बाकी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई वगैरह सब बढ़िया, करप्शन वगैरह कुछ नहीं है ऐसा. थर्ड पे आते हैं हम खाकी नेशनल में. ये भी आपका 2 मेट्रो स्टेशन दूर है यहाँ के हॉस्टल्स. So you should be prepared for that. However, the studies and everything really good. Recently, I took an interview of the graduate of this university, who's now gonna give MCI exam. तो काफी अच्छा उन्होंने मुझे बताया इस यूनिवर्सिटी के बारे में. Now let's find out the next 3 best universities. So अभी तक मैंने आपको जो यूनिवर्सिटी बताई वो टॉप सिटीज में थी. कीव में थी, लिविव में थी, खार्किव में थी. अगर आप ये Tier 1 सिटीज में जाते तो काफी अच्छा रहेगा. फैसिलिटीज ज़्यादा अवेलेबल होती हैं, थोड़ा डेवलप जगह लगती है आपको. पीपल आर मोर लाइक व्हाट डू यू कॉल इट, दे आर मोर यूज्ड टू ऑफ फॉरेनर्स, तो आपको इतनी दिक्कत नहीं आती. ठीक है. नेक्स्ट में आता है आपका 4th नंबर पे विनित्सा नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी. काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, गुड रिव्यूज फ्रॉम द स्टूडेंट. हॉस्टल्स नॉट सो गुड, अभी इतने अच्छे हॉस्टल्स नहीं हैं, बहुत ज़्यादा शेयरिंग है, जो है पैक्स है. 5th नंबर पे आती है बुकोविनिया. यहाँ पे स्टूडेंट्स, हालांकि छोटा प्रोविंस है, बट स्टूडेंट्स का रिजल्ट वगैरह काफ़ी अच्छा है, पढ़ाई काफ़ी अच्छी है. 6th नंबर पे आती है ये यूनिवर्सिटी, क्योंकि ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी होते हुए भी काफ़ी अच्छा इसका MCI पासिंग रेशियो आया है इस साल का. I think it's 40-50% MCI passing ratio, and it's the most cheapest university, $3,500. ठीक है. I think बुकोविनिया का भी इतना. बेसिकली क्या होता है, आप दिल्ली से कीव जाएंगे. मैं आपको समझाती हूँ, इसमें नहीं समझा पाऊंगी मैं, इसमें समझाती हूँ. सो अगर यू आर, वेट,
So when you fly from India, you fly to Kyiv. There's 3 international airports, Kyiv, Odessa and Kharkiv. ठीक है? So you fly to Kyiv. अब अगर आपको कीव से जाना पड़ेगा यहाँ, है ना, तो थोड़ा सा आपको ट्रेन्स और बसेस लेनी पड़ेंगी, और कोई दिक्कत नहीं। अभी मैं जा नहीं पाई हूँ यहाँ पे। आई हैव बीन टू लिविव, आई हैव बीन टू विनित्सा, ओडेसा एंड खार्किव। पोल्टावा भी मैं वाया होके गई थी, क्योंकि जैसे दिल्ली जयपुर जाना इजी है, दिल्ली पुणे जाना इजी है, कुछ कुछ चीजें होती है ना जो कनेक्टेड होती हैं, तो आपका पैसा भी बचता है, आपका टाइम भी बचता है। तो अगर कीव के कीव में ही आप पढ़ेंगे, यू विल स्टडी इन कीव ओनली, you don't have to spend more time. Just in 6.57 hours you will be in your university. तो जो कीव UFM है, ओके ओके ओके, जो कीव UFM है, it's in the capital city, just 1.5 hours from the airport. I think it's a good university with that kind of budget in Kyiv, main Kyiv. ठीक है, तो इसका है $5,000। मैं सबका बता देती हूँ आपको। इसका $5,000 है, बुकोवेनिया का $3,900 है, इसका $3,500 है, और इससे पहले वाले का बता देती हूँ मैं आपको। तरस शिवचेंको की फीस $4,500 है, लिवीर नेशनल की फीस $4,900 है, खारकीव की $4,800 है। तो जितना आप मेट्रो सिटीज में पढ़ेंगे उतना बेटर है। So this is the one university I recommend. I already told you, Taras Shevchenko National University. This is the university, very nice university. I'm standing in the front of it. यहीं पे इसके सामने एक पार्क है, तरस शिवचेंको का ही पार्क है, और उनकी मूर्ति भी है यहाँ पे। 1834 में स्टैब्लिश हुई है, 6 years इंग्लिश मीडियम है, 500 मीटर मैंने बताया था, 500 मीटर में है, एंड इट इज अ नंबर 1 यूनिवर्सिटी ऑफ यूक्रेन, इट्स अ रैंक्ड यूनिवर्सिटी ऑफ यूक्रेन। So now we're going to discuss a comparative analysis of all the 3 countries, क्योंकि अभी हमने 3 ही countries को करा हुआ है। ओहो, ओके, सो यूक्रेन का क्या है, 6 years है, आप लोग जानते हैं। फिलीपींस का 5 years है, 5.5 years है, यू कैन सेव सम टाइम। अभी कोरोना के चलते आप जो 1.5 है वो अभी से शुरू कर सकते हैं, ये मैंने बता दिया। बेलारूस और ये यूक्रेन दोनों सेम ईयर्स फॉलो करते हैं। सिमिलरली 3 साल प्री क्लिनिकल सब्जेक्ट और लास्ट के 3 साल क्लिनिकल सब्जेक्ट। पॉपुलेशन की बात करें, इसका 4.2 है, इसका 10.68 है, इसके 1 करोड़ है। ठीक है, इंटर्नशिप की बात करें, इंटर्नशिप तो क्योंकि यहाँ पे डिवाइडेड है, लास्ट के 3 साल में क्लिनिकल है, तो आपकी जो हॉस्पिटल क्लासेस होती है वो लास्ट के 3 साल में डिवाइडेड होती हैं। दैट्स व्हाई देयर इज नो सेपरेट internship or anything in Ukraine or in Belarus, so you can't have it, but Philippines की अच्छी बात है, अभी पॉसिबल है आगे आने वाले टाइम में, बिकॉज 1.5 यहाँ करने के बाद जो 4 years का होता है MD कोर्स, उसमें लास्ट ईयर इज क्लर्कशिप, टोटली डेडिकेटेड, 365 days in hospital, possibility in future this can be recognized by India, possible not possible, never know, but मैं आपको बताना चाहती हूँ। बेलारूस का भी सेम है, क्योंकि इसी तरह का रशिया, यूक्रेन, बेलारूस यहाँ पे ऐसे ही फॉलो होता है। लैंग्वेज इस कंट्री की यूक्रेनियन है। फिलीपींस की सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश है, फर्स्ट इज फिलिपिनो, सेकंड इज इंग्लिश ऑफिशियल। इसकी रशियन है। बेलारूस की बेलारशियन बहुत कम लोग बोलते हैं, इवन यूक्रेन में भी यूक्रेनियन बहुत कम लोग बोलते हैं, रशियन ही बोली जाती है, पर हाँ ऑफिशियली उनकी यूक्रेनियन है, बिकॉज रशिया से उनका इतना अच्छा कनेक्शन नहीं, तो वो रशिया को अपना बनाना नहीं चाहते, इसलिए वो अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज यूक्रेन रखते हैं, लेकिन बोली जाती वहाँ पे रशियन है, काफी अच्छे से बोलते हैं वहाँ पे। ठीक है, टीचिंग लैंग्वेज इज इंग्लिश, इज इंग्लिश, इज इंग्लिश। अगर इसमें रशिया का पैरा होता तो शायद बाइलिंगुअल लिखना पड़ता। ठीक है,
इंटरनल एग्जाम होता है इनका क्रॉक, इसका एनमैट, इनमें कुछ नहीं है बेलारूस में। अगर आपको डर लगता है, अगर आपको डर लगता है किसी एग्जाम से, एनमैट में केवल अपीयर होना है, क्लियर नहीं होना। हाँ, क्रॉक 1 एंड 2 में आपको क्लियर करना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप जब फर्स्ट 3 इयर्स अपने प्री क्लिनिकल कर देते हो तो प्री क्लिनिकल का टेस्ट देते हो क्रॉक 1 में, उसमें सारे थ्योरी वाले क्वेश्चंस आते हैं। और जब आप क्लिनिकल कर लेते हो नेक्स्ट 3 इयर्स तो आपको यहाँ पे क्रॉक 2 देना पड़ता है, जिसमें क्लिनिकल सब्जेक्ट्स आते हैं। दैट मेक्स द यूक्रेनियन स्टूडेंट्स मच एक्सेप्टेबल, उनकी डिग्री काफ़ी अच्छी मानी जाती है। लेकिन हाँ, अच्छे से पढ़ेंगे तो क्रॉक 1 क्रॉक 2 एक आपके लिए हेल्प ही करेगा टू लेटर ऑन क्लियर एमसीआई, बिकॉज यू विल रिवाइज द सब्जेक्ट्स। तो डरने वाली बात नहीं, आपको पता होना चाहिए, यू शुड बी नोइंग अबाउट दिस। माई मेन पर्पज टू टेल यू इज दिस। वेदर कंडीशन कोल्ड, ट्रॉपिकल कोल्ड, ठीक है। यूक्रेन का जो, यूक्रेन में जो पढ़ा आपका खर्चा आएगा 25 लाख से लेकर 32 लाख तक जाता है, 32 35 तक भी बोल सकती हूँ मैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लिविव है, 30 लाख तो केवल केवल वहाँ का ट्यूशन फीस और हॉस्टल फीस है, खाने का अलग आएगा। मैं आपको एक अभी फीस स्ट्रक्चर समझा देती हूँ। फिलीपींस का 25 लाख से 32 लाख यहाँ भी जाएगा। बेलारूस का भी 27 लाख से 32 लाख तक जाएगा। तो ये तीनों यूनिवर्सिटी एक ही स्केल पे आती हैं, तीनों कंट्रीज। तो किसी को भी आप चूज कर सकते हैं, ड्यूरेशन का फर्क है केवल, ओके। अदर एक्सपेंसेस, इस जैसे फूड का हो गया, ठीक है ना। अभी 25 लाख में क्या है क्या नहीं, फूड का एक्सपेंस आपको कितना आता है आपको पता होना चाहिए। मेडिकल इंश्योरेंस लगता है, कहीं कहीं हम ऐड कर लेते हैं, लेकिन ये मैं आपको बता रही हूँ कि क्या क्या खर्चे आते हैं। वीजा एक्सटेंशन डिपेंडिंग ऑन विच कंट्री है गोइंग, 50 से लेकर $250 पर ईयर तक वीजा एक्सटेंशन लगता है। एयर फेयर कैन बी 25,000 to 35,000, इट कैन बी 2 वे और समटाइम 1 वे, डिपेंडिंग एट व्हाट टाइम यू आर बाइंग द टिकट्स। एंड पर्सनल एक्सपेंस नॉट डिफाइंड एट ऑल। हाँ, ओ सॉरी, ऑल्सो अवर प्रोसेसिंग चार्ज, बीएमयू का जो चार्ज है, जिसमें हम आपका एयर टिकट, वीजा एंड 6 इयर्स कोई भी असिस्टेंस चाहिए आपको, आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे, आपकी चीजें क्लियर नहीं हो पा रही हैं, तो हम आपको बिल्कुल हेल्प करने के लिए रेडी हैं। सम कंट्रीज डोंट हैव वीजा एक्सटेंशंस, तो आपको नहीं देना पड़ेगा। इन इट कैन बी वैलिड डिपेंडिंग ऑन द टाइम ऑफ बुकिंग, जो आपका बुकिंग है, क्लियर, ठीक है। आई थिंक इट्स क्लियर। बाय बीएमयू we have served already. Now I think I should do it, sent more than 1,500 students, I think more than that. No hidden charges, no fraudulency. What is fraudulency? What is hidden charge? Hidden charge होता है आपको अभी कम बता के भेज देना, वहां जाके आपको पता चलेगा ओके दीज आर द चार्जेस जो मुझे पे करने हैं, ये तो बताया नहीं युक्ति मैम ने, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। फ्रॉडलेंसी क्या होती है, यहाँ से मैंने आपको बोल दिया कि आपको तो इस यूनिवर्सिटी में मान लो लिवीव है, लिवीव में कितने सारे स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हुआ कि वहां जाके उनका लिवीव में हो ही नहीं पाया, उनको जपरोजिया भेज दिया, उनको पोल्तावा भेज दिया। दिस इज फ्रॉडलेंसी। फ्रॉडलेंसी और क्या होती है, आपसे फीस यहाँ पे ले ली, वहां जमा ही नहीं करी, ये फ्रॉडलेंसी होती है। तो ये सब नहीं होगा यहाँ पे। आपको लगता होगा युक्ति मैम के चार्जेस दूसरों से इतने ज्यादा क्यों हैं, मैम ज्यादा क्यों बता रही है। मैंने एक वीडियोस के लिए बताया था, वो लोग कुछ कुछ चार्जेस आपको अलग लिख देते हैं ताकि आपको बाद में दिखे, ये नहीं देखो यहाँ पे मैग्नीफाइंग ग्लास तो देखो दिख गया, अरे ये तो आप मैंने लिखा था आपने तो दिया ही नहीं, वो नहीं, ठीक है। फर्स्ट एवर कंसल्टेंसी टू bring the real picture of studying MBBS abroad, yes. I know in 2015 there were no videos जैसे कि अभी आप देख रहे हैं, बहुत से लोग जा जाके बना रहे हैं। 2015 से पहले कोई ऐसी वीडियो थी नहीं। I was the first to make such videos. First country was Kyrgyzstan और first university was जलालाबाद, जिसकी मैंने वीडियो बनाई थी, जलालाबाद, ओश and Kyrgyz State Medical. So my idea was to that every student should know where they are going. Every student should know what is the university, how is the university.
वी नो हाउ टू डिलीवर प्रॉमिस. लोग प्रोमिस करते हैं फिर उसे पूरा नहीं करते हैं, लेकिन हम लोग मेक श्योर करते हैं कि इफ आई टोल्ड यू समथिंग दैट ऐसा होगा तो वैसा ही हो. ऑलराइट. गॉट अ वेरी रिस्पेक्टफुल नेम in the short span. They are consultancy older than us, पहले से भी हैं, लेकिन students have trusted on us and we are very thankful to every student who has trusted on us, and we have made sure that उनका जो trust है वो ऐसे ही बना रहे. We have aimed to explore more and more medical and engineering colleges. So basically I've been to Ukraine, then I went to China also, went to Belarus also. Recently, I went to Philippines. So ऐसा नहीं कि I'm trying to change your mind. I'm just trying to make you more and more sure कि आप सही जगह जा रहे हो. आपको जितनी ज़्यादा knowledge मिलेगी, आप उतना ही ज़्यादा अच्छे choose कर पाएंगे. Because we know that our country has very less doctors. हमारे यहाँ डॉक्टर्स पेशेंट रेशियो बहुत कम है और उसको हमें अच्छा करना है. इसके लिए हमें इंडिया में इतनी जल्दी नहीं सीट्स बढ़ पाएंगी, तो हमें डेफिनेटली अब्रॉड की तरफ देखना ही पड़ेगा. You can book your seat from our Book My University app. Just go here, यहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिखो, अप्लाई नाउ पे जाओ, आपकी सीट बुक हो जाएगी घर बैठे. You don't have to visit us, you don't have to do anything. You have to stay home, stay safe, stay positive.